हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तुलसी क्लासेस। हमने पिछले जो भी वीडियोस हैं उसमें काइनेमेटिक्स के जो कवर किए टॉपिक्स, वो है आपका लास्ट जो टॉपिक था वो था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन थे 3 रहते हैं, 2 मैंने बताए थे आपको, तीसरा आज बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो तीसरा इक्वेशन होता है वो होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एक्स माइनस एक्स नॉट, या इसे ये भी कहते हैं और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में द सिंपल डिफरेंस इज दैट हियर x एंड हियर x both are same, but x naught is the initial position. Here the initial position is taken to be origin of the coordinate axis is taken to be the initial position. So here we are writing only the final position x, and here we are subtracting the initial position if it is not from the origin, x minus x naught. Now let's derive. We know that acceleration is equal to d dt of v. By chain rule this can be written dx dt. This can be written by the chain rule. Now this will come as dx dt is v, we know, so v dv upon dx. Clear? Now what we will do, this acceleration is equal to v dv upon dx. Transfer dx here, v dv is equal to a dx. Integrating both sides we get limits of the integration for velocity will be from u to v initial to final velocity. Let me write this more clearly, u to v. And now acceleration dx, x varies from x naught initial position to x. This can be 0 to x, then that equation will come. Now see this, integrate this v square by 2, then from u to v is equal to acceleration a, constant acceleration, so it will come outside, ax from x naught to x. So this will come v square by 2 minus u square by 2, upper limit minus lower limit, a x minus x naught. Now expanding this will become v square minus u square is equal to 2 will go there, 2a x minus x naught. So this is the third equation of motion, general equation of motion for kinematics, for uniformly accelerated motion. But what is the benefit of deriving this in this way? Now you can see here we have written acceleration is equal to dv upon dx, that is a dx. Here it is coming in the inside the integration, it is coming a dx. So even if the acceleration is given to be non-constant, okay, acceleration is a function of displacement, then you can take that here. यहाँ पे आप देख सकते हैं acceleration is a function of displacement x, then we can also integrate. So this equation can become valid for even for non-uniformly accelerated motion, but not the last one, last equation. No, we have to first of all, here we have taken a outside the integral sign. This a then will not be taken outside the integral sign, it will be evaluated with the acceleration of the motion given with respect to dx. okay, तो dx के साथ आपको इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ना कि आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब नाउ वी विल मूव टू फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, so this is मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है? 2 तरह का चीज हो सकता है, आइदर फ्री फॉल या फिर नॉर्मल मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो इसके इक्वेशंस क्या हो जाएंगे आपके? इक्वेशन
v इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं u प्लस ए टी। हियर यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, देखिए a इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब देखिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेगेटिव ही लेना है। आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पॉजिटिव भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा आपका सुविधा हो। कभी कभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव लेने में ज़्यादा आसान हो जाता है क्वेश्चन। उस केस में क्या करेंगे आप, देखिए ये जो बना v इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं u माइनस जी टी। ये जनरली बुक्स में रहता है आपके पास, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। जब ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के चलते जब आपका मोशन हो रहा है तो u माइनस जी टी दिया रहता है। इसमें क्या करना होता है, आपको g का डायरेक्ट वैल्यू पुट करना होता है। डायरेक्ट वैल्यू ऑफ g इज पुट विदाउट साइन और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ g, इस जगह पे पॉजिटिव वैल्यू ऑफ g डाला जाता है या फिर डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ माइनस हमने पहले से ही लगा दिया है। देखिए ये जो आपका इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी या फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, आपका ये जो अगर आप यहाँ पे नेगेटिव लेंगे तो माइनस 2gs हो जाएगा। x ले लीजिए, हमने x लेके किया है -2, क्यों, क्योंकि g डाउनवर्ड मोशन में है, ठीक है। g डाउनवर्ड है। सबसे पहले देखिए आप g डाउनवर्ड है तो हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं। सपोज ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ग्राउंड या एक्सिस ऑफ रेफरेंस है। ये अगर एक्सिस ऑफ रेफरेंस आप इसे लेते हैं तो अगर कोई बॉल अगर या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर थ्रो हुआ है, ठीक है, सपोज ऊपर थ्रो हुआ है विथ u वेलोसिटी, तो इसे आपको u वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना होगा और g को नेगेटिव। अगर g को पॉजिटिव लेते हैं तो ऊपर नेगेटिव लेना पड़ेगा। मतलब किसी भी क्वेश्चन को बनाने के पहले आपको एक ग्राउंड क्लियर करना होगा। ग्राउंड मतलब अगर टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, सपोज एक बिल्डिंग है, इसके टॉप से यहाँ से बॉल को थ्रो किया गया ऊपर, तो आप इसमें दो चीज़ ले सकते हैं। आइदर जो ग्राउंड रियल में उसे आप ग्राउंड मान सकते हैं, यहाँ से प्लस माइनस ले सकते हैं, या तो आप इस बिल्डिंग के जो आपका टॉप है इसको ग्राउंड मान के ऊपर और नीचे पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो होते हैं ना, ये आपके मतलब ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यही आपको डालना है। आपका u अगर आप नेगेटिव लेंगे तो g पॉजिटिव भी ले सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिए हम लोग देखेंगे गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ये क्या होता है, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर, ये स्टेट करता है आपका, दिस स्टेट्स, देखिए गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर क्या बोलता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज इन द रेशियो ऑफ सिंपल ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिटी। यानी कि अगर आपको किसी भी पॉइंट से अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर फ्रीली फॉल किया गया, ठीक है, फ्री फॉल किया गया, यानी कि यहाँ पर u जो है u इज इक्वल फ्री फॉल कर रहा है, तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। सपोज ये देखिए ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, 1 सेकेंड हुआ, ठीक है, ये 2 सेकेंड, ये टाइम जो हम लोग ले रहे हैं विथ रेफरेंस टू जब से वो छोड़ा गया था, ठीक है, आफ्टर द फॉल और एट द टाइम ऑफ फॉल इट वाज एट टाइम ऑफ फॉल टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है ना, ये डिस्टेंस आपका जो है देखिए 1 सेकेंड में कितना गया, 1:3:5 इस तरह से जाता है। यानी कि ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिटी जो है ये 1:3:5 इस रेशियो में, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है आपका, दिस डिस्टेंस, ये जो आपका डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंसेस, ये एक डिस्टेंस हुआ, फिर आपका ये एक डिस्टेंस हुआ, ठीक है। इस तरह से आपका जो डिस्टेंसेस है 1:3:5 इस तरह से ऑड नंबर में जाएगा। तो इससे प्रूफ कैसे करते हैं वो प्रूफ देख लीजिए, सिंपल प्रूफ है। प्रूफ बिल्कुल सिंपल है। देखिए हम लोग जानते हैं प्रूफ, देखिए प्रूफ क्या होगा यहाँ पर, आप देखिए सपोज फॉर 1 सेकेंड
1 सेकेंड जब चलेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाई एक्सिस पे आ रहा है नीचे, ठीक है, y इज इक्वल टू -12g टी स्क्वायर, ठीक है, -12g टी स्क्वायर होगा। अब देखिए, अब जो है फॉर 2 सेकेंड यानी कि ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड फॉर 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड ऑब्जेक्ट जब ट्रेवल करेगा तो वो जो वाई एक्सिस पे कितना नीचे आएगा, -12g। अब वो 2 सेकेंड चला गया यानी कि टाइम t जो है ये कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड यानी कि 2t, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। t अगर पहला सेकेंड अगर हम t कहते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड -12g t स्क्वायर, तो दूसरा हाफ में जो है g t 2t स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह थर्ड में सिमिलरली y इज इक्वल टू -12g 3t का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ये होता जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर -12g 2t स्क्वायर 3t स्क्वायर, यानी कि 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड दूसरे टाइम में, तीसरे टाइम में, ठीक है। और यहाँ पे t को हम 1 डालेंगे क्योंकि t पहला 1 सेकेंड है, यानी कि ये जो बन के आएगा आपका, देखिए ये इतना हो गया। दिस इज इक्वल टू, सपोज हम मानते हैं, आप मान लीजिए a, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जब भी इंटरवल्स में, इक्वल इंटरवल में, हमें ये नहीं निकालना है कि शुरू से कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। हर एक पार्ट इक्वल इंटरवल रहेगा, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड में कितना कितना डिस्टेंस जा रहा है। पहला 1 सेकेंड में y इज इक्वल टू a माने, जो कि -12g स्क्वायर है, ठीक है। दूसरे में -12g 2t स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड 2t स्क्वायर, ठीक है। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे आप t, हाँ ठीक है, 2t स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, -12g टी स्क्वायर इंटू 4, ये इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, तो ये निकल के आएगा 4a, ठीक है। उसी तरह इसमें देखिए, ये निकल के आएगा -12g टी स्क्वायर इंटू 9, दैट इज इक्वल टू 9a। इस तरह से ये निकल के आ रहा है, a 4a 9a, ठीक है। तो अब देखिए आप इसमें सेम वे एट या आफ्टर लिखिए, आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 1 2 3 था 4 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू -12g। अभी देखिए t क्या है, 4 सेकेंड हो गया, 4t स्क्वायर, यानी कि -12g ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर, 4 4 16 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 16a। अब देखिए, पहले सेकंड में a, दूसरे 2 सेकंड के बाद 4a, 3 सेकंड के बाद 9a, 4 सेकंड के बाद 16a। तो ये तो पूरा हो गया, हमें इंटरवल्स निकालना है, यानी कि 1 सेकंड में अगर ये a चला है तो 1 से 2 सेकंड के बीच में कितना चलेगा, बिटवीन 1 to, ठीक है, देखिए बिटवीन 1 to 2 सेकंड, फिर बिटवीन 2 to 3 सेकंड। तो ये देखिए, ये मैं यहाँ से रब करता हूँ, ठीक है। बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 4a minus a, दैट इज इक्वल टू 3a। उसी तरह बिटवीन 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज, देखिए 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में 9a minus 4a, 9a minus 4a दैट इज इक्वल टू 5a, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से, पहले 1a था 1 सेकेंड में, दूसरे सेकेंड के बाद 3a हुआ, और 2 से 3 सेकेंड के बीच में 5a हुआ, यानी कि ये जो रेशियो आ रहा है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट
यूनिट टाइम इंटरवल्स is in the ratio 1:3:5:7 and so on। ठीक है, A 4A 9A, ये जो है देखिए रेशियो इतना आ गया आपका। ये था आपका गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकेंड। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, अगर वो 10 सेकंड तक गया या 10 सेकंड तक का मोशन आप देख रहे हैं, 10 सेकंड तक का मोशन देख रहे हैं, 0 to 10 सेकंड, तो 10 सेकंड में कितना गया, यानी कि फ्रॉम 9 सेकंड, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, सपोज मैं लिख रहा हूं 10th सेकेंड इज द एंड 10 सेकेंड्स। 9 सेकेंड में जितना गया, यानी कि 10 सेकेंड में टोटल जितना गया आपका 9 से 10 सेकेंड का बीच, मतलब 10 सेकेंड में जितना गया माइनस 9 सेकेंड, यानी कि देखिए S10 माइनस S9, S इज distance traveled in 9 or 10 second here। S10 for 10 second, S9 for 9 सेकेंड। ये तो देखिए, ये मैंने आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया बताया कि होता क्या है। अब टीएथ सेकंड वो दे सकता है, ठीक है, 10th सेकंड, 5th सेकंड या 1st सेकंड भी दे सकता है। तो ये आपका बता दें डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, सपोज मैंने लिया 10th सेकंड, यानी कि 9 और 10 सेकंड के बीच में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, तो एग्जाम में फॉर्मूला याद रहेगा तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला जो है ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकंड, वो क्या होता है, दिस इज the distance traveled in th second is the distance traveled in t seconds minus डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t माइनस 1 सेकेंड। ठीक है, t सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और t माइनस 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो टीएथ सेकेंड का मिल जाएगा। इसका मतलब फॉर एग्जांपल आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकेंड इज st माइनस S9। यहाँ पे क्या है, st इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड और S9 है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकेंड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें क्या करना होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ये तो पक्का है इसमें। ठीक है, हम लोग वही लेके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में फॉर्मूला में डाल के हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। देखिए st टीएथ सेकेंड में ut प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा, AT स्क्वायर, और st माइनस 1 कितना होगा, ये हो जाएगा u t माइनस 1 ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। यही होगा क्योंकि टाइम t माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर। इसे हम लोग जो एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, ut माइनस u प्लस हाफ a, ये t माइनस 1 स्क्वायर कितना होता है, t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, ये निकल के आएगा आपका ut माइनस u प्लस हाफ AT स्क्वायर प्लस हाफ a
माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा 80, इतना निकल के आ गया। और ये जो है इतना है आपका, तो एस टी माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस, ये देखिए इसे मैं यहाँ ले आ रहा हूँ, माइनस लगा रहा हूँ, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस यू टी प्लस यू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस ए टी। ठीक है, सारे साइन चेंज हो गए, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस ए टी प्लस यू एंड माइनस यू टी। अब इसमें जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, यू टी कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा कितना u, ठीक है। इससे मैं a/2 कॉमन अगर ले लेता हूँ प्लस a/2, तो ये जो निकल के आएगा a/2 मैंने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 2t माइनस 1, यही निकल के आएगा, माइनस a/2 है और प्लस a/t है आपका। सो दिस इज द फॉर्मूला, ये जो है आपका फॉर्मूला निकल के आया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन th सेकंड के लिए। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर हो गया, फ्री फॉल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ये था आज का सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो काइनेमेटिक्स का जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, उस पर बेस करके और फ्री फॉल ग्रेविटी जो भी है, मोशन अंडर ग्रेविटी मैंने आपको बताया, उन दोनों टॉपिक्स पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कवर करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखने के लिए तैयार रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग तुलसी क्लासेस, मेकिंग साइंस अ पैशन।